Question 1. An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in the figure. फिगर में दिया है इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज सर्किट में है, जिसमें सोर्स है एसी सोर्स क्या है, सोर्स है एसी. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी एंड आर इज गिवन एज 40 volts, 10 volts and 40 volts respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10 root 2 amperes. The impedance of the circuit is, निकालना क्या है, निकालना है impedance of the circuit. Given है amplitude current that is IM is given as 10 root 2 amperes. We know RMS current that is IRMS is given by amplitude current that is IM divided by root 2. IM अभी ऊपर लिखा हमने 10 root 2 divided by root 2 करेंगे तो IRMS आएगा, that will be equal to 10 amperes. Also we know VRMS is given by root over VR square plus VL minus VC square, where VR is potential difference across resistor that is given in the question as 40 volts. VL is potential difference across inductor that is 40 volts, and VC is potential difference across कैपेसिटर दैट इज गिवन एज 10 volts. इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा रूट ओवर 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1600 प्लस 900 दैट इज रूट ओवर 2500 दैट विल बी इक्वल टू 50 volts. तो वी नो इम्पीडेंस Z इज गिवन बाई VRMS डिवाइड बाई IRMS. तो VRMS हमने निकाला 50 volts एंड IRMS 10 amperes. तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा Z विल बी इक्वल टू 5 ohms. That is in option D. Next question. A series LCR circuit containing 5H inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volts variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. निकालना क्या है, निकालना है angular frequency of the source. तो resonant frequency, we know resonant frequency omega naught is given by 1 upon root LC, where L is inductance and C is capacitance. L दिया है क्वेश्चन में दैट इज 5H एंड कैपेसिटेंस इज 80 माइक्रोफेरेड. तो ओमेगा नॉट दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगा 1 अपॉन रूट ओवर 5 इंटू 80 माइक्रोफेरेड को चेंज करेंगे 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 दैट इज 80 फेरेड्स, 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेरेड्स. तो यहाँ से आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाई 50 रेडियन पर सेकेंड. सिंप्लीफाई करके तो यहाँ से also we know angular frequency of source is given by omega. Omega is equals to omega naught plus minus delta omega, where delta omega is given by R divided by 2L, where R is resistance and L is inductance. तो रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में दैट इज 40 ओम. तो इसमें पुट करेंगे एंड L दैट इज इंडक्टेंस इज 5H. तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा डेल्टा ओमेगा विल बी गिवन बाई 4. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा. तो इसमें पुट करेंगे तो ओमेगा विल बी गिवन बाई 50 दैट इज ओमेगा नॉट हमने जो ऊपर निकाला था 50 रेडियन, और डेल्टा ओमेगा इज 4. तो यहाँ से आएगा रेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दैट इज फ्रॉम 46 to 54. दैट मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू 46 and 54 रेडियन पर सेकेंड. दैट इज इन ऑप्शन C is the right answer. Next question. A step down transformer connected to an AC mains supply of 220 volts is made to operate at 11 volts 44 watt lamp. Ignoring power losses in transformer, what is the current in the primary circuit? Current in the primary circuit निकालना है. We know power is given by V into I, where V is supply line voltage, IP is primary current, and P is power that operates the lamp. Power that operates the lamp is 44 watts. तो इसमें पुट करेंगे 44 इज इक्वल्स टू V को पुट करेंगे दैट इज सप्लाई लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स. तो यहाँ से आएगा IP विल बी इक्वल टू 0.2 एम्पियर. ऑप्शन ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between the current and the voltage. The power factor of the circuit is, निकालना क्या है, power factor of the circuit. We know for LCR circuit, phase difference is given by phi is equals to tan inverse XC minus XL upon R. और phi is equals to tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R. ये डिपेंड किस पे करता है, अगर XC बड़ा है तो ये वाला दैट इज XC माइनस XL अपॉन R चलेगा, और अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC अपॉन R इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज फेज डिफरेंस फाई के लिए. गिवन क्या है क्वेश्चन में, व्हेन L इज रिमूव्ड, जब L रिमूव करते हैं तो यहाँ से दैट मीन्स XL will be equal to 0, that is inductive resistance. Inductive resistance will be 0, that means phi will be given by tan inverse XC upon R. क्योंकि जब XL 0 होगा तो ये वाला यूज करेंगे इक्वेशन tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, तो यहाँ से आएगा phi will be equal to tan इनवर्स XC by R. और जब C रिमूव करेंगे, when C is removed, that is capacitive resistance is 0, that means phi is tan inverse XL upon R. By the question दोनों के लिए phi है, that is pi by 3 and pi by 3, that means tan inverse XC by R is equals to tan inverse XL by R. ये तो दोनों तभी बराबर होंगे जब XC is equals to XL. तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, XC is equals to XL. And we know impedance Z is given by root over R square plus XC minus XL का स्क्वायर. जब XC and XL बराबर है, that means XC minus XL will be equal to 0. तो Z will be given by R. Z will be equal to R. Also we know power factor, that is cos phi is given by R divided by Z. तो Z की वैल्यू इस बार है अपने पास R. That means cos factor, power factor cos phi will be equal to R upon R, that will be equal to 1. That is in option B. B is the right answer. Next question. A 40 microfarad capacitor is connected to the 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is, निकालना क्या है, RMS current. We know capacitive reactance that is XC is given by 1 upon omega C, where omega is 2 pi by T, और हम लिख सकते हैं XC is equals to 1 upon 2 pi nu C, where nu is 1 upon T. तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज 1 अपॉन 2 पाई, न्यू को लिखेंगे 50 हर्ट्ज, क्योंकि 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, तो इसमें आएगा न्यू को 50 रिप्लेस करेंगे, और C इज कैपेसिटेंस दैट इज 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 गिवन इन द क्वेश्चन. तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से आएगा 250 अपॉन पाई ओहम्स इसकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो वी नो RMS इज गिवन बाय VRMS अपॉन XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो VRMS दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 200 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय XC इज 250 डिवाइडेड बाय पाई, तो यहाँ से आएगा सिंप्लीफाई करके 2.5 एम्पियर्स. दैट इज इन ऑप्शन बी. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मिनट. The variation of EMF with time for 4 types of generators are shown in the figure. Which among them can be called AC? AC किसमें कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 और 4. We know EMF generated due to rotating conductor in a generator is given by E is equals to minus d phi by dt, where phi b is the magnetic flux linked with the कंडक्टर. फ्रॉम अबोव EMF जनरेटेड इज वेरिंग फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, क्योंकि d बाई डी टी. EMF इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो E बाई टी का ग्राफ आएगा विथ अपोजिट पोलैरिटी. लेकिन पोलैरिटी क्या है, अपोजिट, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है तो अपोजिट पोलैरिटी है.
और सिंपली हम कह सकते हैं चेंजिंग पोलैरिटी इज टर्म्ड एज AC। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखेंगे पोलैरिटी चेंज हो रही है, पहले प्लस ऊपर पॉजिटिव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में। तो ऑप्शन ऑल आर कॉल्ड एज AC। तो ऑप्शन A B C और D सारे राइट आंसर होंगे। They will be called as, all will be called as AC। Next question. A circuit when connected to an AC source of 12 volts gives a current of 0.2 amperes. The same circuit when connected to DC source of 12 volts gives a current of 0.4 ampere. The circuit is, दिया क्या है, जब सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं AC सोर्स तो यहाँ से इम्पिडेंस हम अगर निकालेंगे Z इज इक्वल्स टू V बाई आई। V कितना है, V दिया है 12 वोल्ट्स और I जो करंट है दैट इज 0.2 एम्पियर। तो अगर हम इम्पिडेंस यहाँ से निकालेंगे दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 0.2 दैट इज 60 ओम्स। और जब सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं DC सोर्स से तो अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से V बाई आई से तो V दिया है 12 वोल्ट्स और करंट दिया है 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से आएगा रेजिस्टेंस 30 ओम्स। तो दोनों के लिए इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस जो है जो अलग अलग है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन 4 दिए, चारों सीरीज सर्किट है। एज इन केस ऑफ DC सप्लाई, अगर हम DC सप्लाई की बात करें, द कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट आफ्टर स्टेडी स्टेट। जो कैपेसिटर है वो एक्ट कर रहा है ओपन सर्किट किसमें, DC सप्लाई में, DC सप्लाई में। एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट, दैट मीन्स जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर सीरीज सर्किट में नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन C B और D दोनों में, तीनों में कैपेसिटर है, लेकिन हमें दैट मीन्स ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा फिर जब इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे। सर्किट तभी पॉसिबल है जब कैपेसिटर इसमें नहीं होगा। दैट मीन्स सीरीज सर्किट विल बी पॉसिबल ओनली फॉर L एंड R, दैट मीन्स इंडक्टर एंड रेजिस्टर। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure shows a circuit that contains 3 identical resistors with resistance 9 ohm each, 2 identical inductors with inductance L is equals to 2 microhenry each, and an ideal battery with EMF is equals to 18 volts. The current I through the battery just after the switch is closed. Just after the switch is closed, ये जो स्विच दिया है यहाँ पे जब ये क्लोज करेंगे तो करंट निकालना है सर्किट में। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, इंडक्टर जो है, इंडक्टर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट, लाइक ओपन सर्किट, ये बात याद रखनी है। और कैपेसिटर एक्ट्स लाइक क्लोज्ड सर्किट इन डीसी में, दोनों के लिए DC में। EMF दिया है 18 वोल्ट, दैट इज आइडियल बैटरी दिया है, दैट मीन्स DC सप्लाई। तो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड तो इंडक्टर क्या करता है काम, इंडक्टर रहता है ओपन सर्किट। तो यहाँ पे इंडक्टर है, ये ओपन जाएगा, ये ओपन जाएगा, दैट मीन्स ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, सॉरी ये ओपन रहेगा और ये ओपन रहेगा। लेकिन जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये क्या, ये क्लोज रहेगा, तो ये क्लोज रहेगा यहाँ से। दैट मीन्स तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है इसका बनेगा, इस रजिस्टर, ये रजिस्टर आएगा, ये रजिस्टर आएगा और ये रजिस्टर आएगा। लेकिन ये जो रजिस्टर है ये ओपन है यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आएगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट विल बी इक्वल टू एक आर और एक आर, दो ही आर सर्किट में आएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी गिवन बाय R डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R/2, दैट इज इक्वल्स टू R की वैल्यू दिया है 9 ओहम्स, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 ओहम्स। तो EMF दिया है 18 वोल्ट्स इन क्वेश्चन। तो यहाँ से करंट विल बी इक्वल टू V बाई आर। तो V दिया है 18 डिवाइडेड बाई R दिया है 9/2। तो 9/2, 18 डिवाइड बाई 9/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से करंट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स इज द
आंसर, बट ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन 4A विल बी द राइट आंसर।